Good evening, everyone. I hope you all are fine. We are going to explore an insightful session today, which is related to the SKU management strategies using Busy software, which is tailored specifically for the apparel and garment industry. So, in this session, we will discover the inventory accuracy, streamline operations, and enhance overall efficiency of garment industry. So, this session is going to be a crucial session. So, I would request all of you to be stay with us till end so that we can show you the entire features related to garment industries. And in this session we will be covering different types of industries related to garment industry के related जो सेशन कर रहे हैं, इस सेशन में हम लोग डिफरेंट सेगमेंट ऑफ गारमेंट इंडस्ट्रीज को कवर अप करने वाले हैं. तो आप लोग बने रहें और इस सारे फीचर्स को वन बाय वन गो थ्रू करें. तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस कि बिजी का थर्ड लार्जेस्ट कस्टमर सेगमेंट जो है वो अपीयर्स और गारमेंट्स पे है. एंड द इंडस्ट्रीज दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वेबिनार इज रिलेटेड टू रिटेल. बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे हम अंडर गारमेंट्स हो गया या किड्स गारमेंट्स हो गया या अदर रिटेल्स होते हैं जैसे शर्ट्स, पैंट्स. ये सारे रिटेल प्रोडक्ट की कैसे हम बिजी में जो है ऑपरेट कर सकते हैं, स्टॉक्स related to billing will go through on that. होलसेल एंड ट्रेडिंग डिफरेंट होलसेल इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे कि कॉटन वुलन इंडस्ट्रीज होते हैं जो होलसेल पे अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं अगेंस्ट द ऑर्डर्स. एंड ऑल्सो दे डू ट्रेडिंग. So that related industries will be covering on this webinar. And at the end, we'll also look on the some manufacturing features in Busy that will help small manufacturing unit to explore or to resolve their queries through Busy software. Now, starting with the billing section, which is related to retail and wholesale also. So, first questions that may appear is that कि हम बारकोड स्कैनिंग से बिलिंग कर सकते हैं, अपने आइटम्स को ट्रैक कर सकते हैं क्या, हम फास्ट बिलिंग कर सकते हैं. So yes, from Busy you can do a fast billing by scanning your products in the transaction level and you can generate your bill. So एक बार practically भी देखते हैं कैसे ये possible है Busy में. So I show you on the basis of retail industry. तो retail में अगर हम बिल रेज करना चाह रहे हैं तो बारकोड बिलिंग के लिए हम सेल पे जा सकते हैं. Here we have an option called POS, point of sale billing. So हो सकते हैं रिटेल के डिफरेंट आउटलेट हो, 3-4 आउटलेट हो सकते हैं. तो इफ आई गो विद दी काउंटर वन आउटलेट, अगर कोई काउंटर वन आउटलेट के यूजर एंट्री कर रहे हैं तो दे कैन सेलेक्ट अ डिफरेंट सीरीज कॉल काउंटर वन. एंड पार्टी आप यहाँ पर डिफॉल्ट कैश रख सकते हैं. एंड देन इफ यू वांट टू ट्रैक दी मोबाइल नंबर ऑफ द कस्टमर, तो आप कस्टमर के मोबाइल नंबर मेंशन कर सकते हैं. एंड ऑटोमेटिकली द नेम एड्रेस विल गेट कैप्चर. अगर वो पार्टी ऑलरेडी आपसे प्रीवियसली खरीद के लेके गया है, if the party have already purchased from your store, then the detail will get captured against the mobile number. Salesman, you can track salesmen also, you can maintain salesman. And now here you can scan the product. Okay, so once you scan the product, the item will get picked automatically. Let's suppose, for example, if I'm going to sell a denim jacket, so here you can see my barcode is 70000. So this is a unique barcode. So if I mention this barcode directly in the item, or I scan this barcode directly in the item, then it will get picked automatically. Let's show you. So if I press enter, see this denim jacket has been picked automatically. Along with that, another item is going to pick. That is in case of special offer. That means buy denim jacket one and get fancy shirt one free. So that comes on the point of scheme. If you apply the scheme or if you enable the scheme, तो अगर आप स्कीम एनेबल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रिलेटेड आइटम भी पिक्ड हो जाएंगे. ठीक है, तो आप देख सकते हैं द रिलेटेड बारकोड नंबर, द साइज, द कलर ऑलरेडी हैज बीन गेट पिक्ड. तो अगर किसी का बारकोड स्कैनर काम नहीं कर रहा, सो यू कैन पुट द बारकोड नंबर आल्सो ओवर हियर एंड द आइटम एंड द रिलेटेड साइज कलर विल गेट पिक्ड ऑटोमेटिकली. तो आप देख सकते हैं ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली पिक हो चुके हैं. द बारकोड, साइज, कलर हैज बीन पिक्ड. So this is how you can scan the product and instantly you can generate your invoice. तो आप देख सकते हैं सेव करते वक्त भी आप कैश सेटलमेंट कर सकते हैं, कार्ड यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं. So once you save this, you will get to print your invoice. If you need to email or SMS, you can do it from here also directly. तो print पे भी अगर हम देखें तो आपको सिलेक्शन भी मिल जाएंगे अगर आपके मल्टीपल फॉर्मेट्स है. तो हैविंग मल्टीपल फॉर्मेट्स with having multiple printers. So you can select the format, you can select the printers from
from here also, and you can print your invoice. Okay. So अगर हम चाहते हैं कि इंस्टेंटली हम शॉर्टकट की F2 प्रेस करें और इंस्टेंटली मेरा बिल प्रिंट हो जाए, मुझे प्रिंट प्रीव्यू ना दिखे, ना मुझे प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़े, बैकएंड पे मेरा प्रिंटर सेलेक्ट हो जाए, so it will reduce your time. Yes, it can be done in Basic. तो आप प्रिंटर ऑप्शन भी ऑफ कर सकते हैं, सिलेक्शन वाला आप डायरेक्ट सेव करोगे तो इंस्टेंटली प्रिंट हो जाएगा, आपको प्रिंटर सिलेक्शन का ऑप्शन या प्रिंट फॉर्मेट सिलेक्शन का ऑप्शन भी नहीं आएगा. So you can reduce this time, you can reduce these features from the transaction level to do a fast billing. Okay, अब SMS send करना चाहते हैं, then you can send SMS via WhatsApp or via API. Or coming on the next point, that is, can the bill include the size, color, detail of the item? Yes, obviously, as I show you that कि जब भी आप यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, तो यू कैन सी दैट ऑटोमेटिकली की जो साइज कलर्स है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएंगे. आप साइज कलर वाइज इनवॉइस मैनेज कर सकते हैं. बिलिंग पे आप साइज कलर इंफॉर्मेशन को इनवॉइस में प्रिंट भी कर सकते हैं. विल द जीएसटी रेट वैरी बेस्ड ऑन आइटम प्राइस? यस, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट नीडेड फॉर द गारमेंट इंडस्ट्रीज. एज यू ऑल नो दैट अगर किसी भी आइटम प्रोडक्ट की प्राइस अगर जो है 1000 या 1000 के ऊपर हो जाती है, तो उस केस में जीएसटी रेट 12% हो जाता है. ठीक है, 5% वाला आइटम 12% हो जाएगा उस केस में. तो आप इस तरीके की जीएसटी टैक्सेशन जो है कंडीशन सेट कर सकते हैं. हालांकि हम लोग टैक्स कैटेगरी मास्टर्स बनाने का ऑप्शन दे रहे हैं बिजी में. यू कैन सेट दिस काइंड ऑफ category masters from here also, as I have created one category master that GST 5% will convert to 12% by setting a condition that if the net price is going greater than or equals to 1000. तो अगर किसी भी आइटम्स की जो है सेल प्राइस 1000 रुपए से ज्यादा हो रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेलेक्टिंग दिस आइटम, suppose I am selling this, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स परसेंटेज 6% ले लिया. ठीक है. So you can set a condition that if the items belong to a 5%, according to the condition that you have set in the tax category, उस condition के basis पे आपका 1000 ले लेगा. अगर आप इस पे 1000 के नीचे करते हैं, ठीक है, 600 या जो भी है, तो उस केस में आपकी यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्स परसेंटेज चेंज हो गया. ठीक है, 2.5% हो गया, मतलब 5% हो गया, जीएसटी 5%. सो इट विल relate on the item price. Coming on the next point, how to track which salesman made the sale. So here you can see that each and every invoice आप salesman track कर सकते हैं. ठीक है, और आप salesman wise report भी देख सकते हैं, कौन सा salesman wise क्या सेल हुई पूरी दिन में, तो आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं. रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा सेल्समैन के देखने, अगर इस सेल्समैन के रिलेटेड आज के दिन में कितने ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर सेल्समैन के रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको व्यू करा देंगे. अगर आपको वैल्यू भी देखनी है तो यू कैन go through with the value also, कितने रुपए की बिलिंग हुई है. तो जहां से आप सेल एंट्री कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, उसके लिस्ट पे भी आप जाके सेल्समैन वाइज ट्रैक कर सकते हैं. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ शेयरिंग बिल वाया व्हाट्सएप? यस, सो अ कॉमन बेनिफिट इज दैट यू नो नीड टू प्रिंट. आपका पेज जो है वेस्ट नहीं होगा, आपको प्रिंट करने की कोई जरूरत नहीं है, हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है. आप वाया व्हाट्सएप आप इसको जो है सेंड कर सकते हैं, और व्हाट्सएप में आपका पीडीएफ कॉपी भी अटैचमेंट होकर चला जाएगा. दैट मीन्स कि फॉर एग्जांपल कि आपने ये एंट्री किया हुआ है, एंड इफ यू सेव दिस, नाउ यू आर गोइंग टू सेंड थ्रू एसएमएस. तो एसएमएस में आप व्हाट्सएप सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर एग्जांपल. तो यहाँ पर आप मैसेज बॉक्स कुछ भी मेंशन कर सकते हैं. प्लीज फाइंड द अटैचमेंट. डिफॉल्ट टेक्स्ट विल गेट अपीयर ओवर हियर. आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से मैसेज बॉक्स, और टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जो डिफॉल्ट टेक्स्ट आप सिलेक्ट करेंगे. एंड इफ यू क्लिक ऑन द सेंड बटन, इफ योर व्हाट्सएप वेब व्हाट्सएप इज गेट लॉगिन, आपको वेब व्हाट्सएप लॉगिन रखना है. तो व्हाट विल हैपन, you can see the concerned person phone number has been get selected, the message has been dropped in the message box. You just have to click on the send button. So along with the PDF attachment, the message will move on to that concerned person. ठीक है. तो रिटेल क्षेत्र में आप जो रनिंग कस्टमर्स है उनको इंस्टेंटली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बिल कॉपी. कमिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, कैन द डिटेल ऑफ एक्सचेंज आइटम बी रिकॉर्ड ऑन सेम बिल? यस, एक्सचेंज इन द सेंस
कि अगर आपसे कोई कस्टमर खरीद के लेके गया, नेक्स्ट डे द कस्टमर नीड टू एक्सचेंज द प्रोडक्ट विद अदर प्रोडक्ट, so customer says that I need to exchange my item. You just exchange my item and you raise a new bill, or you adjust the return item in my new bill. ये कर सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट भी आप सबके साथ शेयर कर दूं कि इस फीचर को अगर आपको रिक्वायर्ड होती है तो आप इसको कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर आप एनेबल कर सकते हैं, अलाउ सेल रिटर्न इन सेल वाउचर। ये इस फीचर का मेन हेडिंग है। तो आप इसको ऑन कर सकते हैं इन्वेंट्री में। देन यू कैन यूज दिस फीचर इन सेल्स मॉड्यूल। ओके, जैसा कि आप फॉर एग्जांपल आपने आइटम्स लेगिंग्स आप जो है सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और इस साइज का आप लेगिंग्स जो है कस्टमर को सेल कर रहे हैं, या कस्टमर इस साइज का लेगिंग्स आपसे मांग रहा है, दे आर आस्किंग फॉर or need to purchase this size leggings, but previously customers bought cotton leggings from your store, and in that case the previous size was medium. तो यहाँ पर ये क्वांटिटी, रिटर्न क्वांटिटी या एक्सचेंज क्वांटिटी कैसे पता चलेगा कि आप अभी लार्ज साइज वाले सेल कर रहे हैं बट आप मीडियम साइज वाले क्वांटिटी को रिटर्न लेना चाह रहे हैं, एक्सचेंज कराना चाह रहे हैं, या कस्टमर एक्सचेंज करना चाह रहे हैं। तो माइनस साइन इज द आइडेंटिटी that will help you to identify that this quantity is going to be get returned. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस, जब भी आप इस ट्रांजैक्शन में माइनस मेंशन कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अमाउंट से भी माइनस हो गया। अभी देखेंगे तो देखा गया कि जो करंट बिल है उसमें वैल्यू 0 है, तो कस्टमर नो नीड टू पे एनी अमाउंट बिकॉज कस्टमर इज एक्सचेंजिंग द प्रोडक्ट विच इज सेम, विच प्राइस इज सेम विद द न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो नया प्रोडक्ट और पुराना प्रोडक्ट जो रिटर्न हो गया, रिटर्न के लिए माइनस सिंबल आपको यूज करना है क्वांटिटी के आगे और इन दी क्वांटिटी कॉलम। दिस विल वर्क एज ए एक्सचेंज। नाउ कमिंग ऑन दी प्राइसिंग एंड डिस्काउंटिंग मॉडल। तो प्राइसिंग डिस्काउंटिंग मॉडल बेसिकली रिटेल इंडस्ट्रीज के अलावा आप होलसेल इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में मेंटेन कर सकते हैं। रिटेल इंडस्ट्रीज में तो बाय डिफॉल्ट आप प्राइस सेट करके रखते हैं, तो अलग से कोई प्राइसिंग स्ट्रक्चर मैनेज करने की रिक्वायर्ड होती नहीं है। हाँ, स्कीम सेट कर सकते हैं, बाय टू गेट वन फ्री, बाय टू गेट 20% डिस्काउंट, इस तरह का स्कीम सेट कर सकते हैं रिटेल के क्षेत्र में। ठीक है। हाँ, अब अगर हम प्राइसिंग मोड को मेंटेन करना चाहें तो होलसेल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में प्राइसिंग मोड हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर हम क्वेश्चंस को टेकअप करते हैं, कैन वी सेट होलसेल एंड रिटेल प्राइस ऑफ आइटम? तो हाँ, ऑब्वियसली अगर आप होलसेल या ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में हो सकते हैं दो तरह के कस्टमर्स हो। तो यू विल बी हैविंग टू टाइप ऑफ कस्टमर, वन इज अ होलसेल पार्टी एंड अनदर वन इज अ रिटेल पार्टी। So if you need to manage your pricing on the basis of that party, or you need to bifurcate the pricing on the basis of the party, then you can do it from within. Okay, कैसे कर सकते हैं एक बार देखते हैं। यहाँ पर you will get a party wise pricing structure. So before showing the features, let me highlight the options from where you can get to enable that feature, that is under administration configuration, features and options, inventory. So here you will find this option, item pricing mode in vouchers. From here you can select party group item wise, or you can enable the feature for party item pricing discount structure. Okay. तो अगर आप इसको ऑन करते हैं then you will get the options from administration configuration, party item pricing structure. From here you can set party group wise. So you are having two groups, one wholesale and another one is for retail. Okay. So for wholesale you can set a different pricing. तो आप होलसेल के लिए ये सारे आइटम्स जो आपके आइटम लिस्ट आ जाएंगी, एंड देन यू कैन मेंशन दी सेल प्राइस, द एमआरपी, द डिस्काउंट फॉर दैट होलसेल पार्टी। तो दोज पार्टीज विल बी अंडर होलसेल ग्रुप। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने बहुत सारे पार्टीज होलसेल ग्रुप के अंदर मेंशन किए हुए हैं, जैसे ये होलसेल पार्टी है तो हमने ग्रुप यहाँ पर होलसेल मेंशन किया हुआ है। तो द कंडीशन विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप दैट यू आर डिफाइनिंग इन द अकाउंट मास्टर। तो रिटेल के लिए भी आप अलग से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। So this is how you can set your party wise, party group wise pricing structure for your item. And festive discount and special offer boost sale. Obviously, we all know that we can set a festive offer to boost up our sales so that we can use our old stock, we can increase our revenue, we can generate our sales. That is possible through scheme. Okay.
तो स्कीम का भी मैं फीचर बता दूं कि फीचर्स आप ऑन कर सकते हैं कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर इन्वेंट्री में जाकर। ठीक है, यू कैन एनेबल दिस स्कीम, वंस यू एनेबल दिस स्कीम यू कैन सेट योर स्कीम फॉर मास्टर्स एंड स्कीम मास्टर्स। ओके, सो हियर यू कैन क्रिएट योर स्कीम। जैसे मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ रिटेल पे, जैसे मैंने स्कीम सेट करके रखा हुआ है। You can see here also in retail company also have created a scheme like buy one get one free. So here once you're creating this scheme, you can set a starting date and ending date. आप अपना starting date ending date set कर सकते हैं कि कौन से डेट से कौन से डेट तक ये स्कीम अप्लाई होगा। अगर आपको टाइम सेट करना है, कभी कभी आप स्टोर्स पे देखेंगे कि हैप्पी आवर्स चल रहे हैं, तो इस घंटे के मतलब 9 बजे से लेके आप 12 बजे तक आइएगा तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा या बाई वन गेट वन फ्री मिलेगा। तो यू कैन सेट योर टाइम ऑफ। ठीक है, तो इस तरीके की स्कीम आप सेट कर सकते हैं। बाई वन डिफरेंट डिफरेंट स्कीम मास्टर डिफाइन कर सकते हैं। बाई वन गेट वन हो गया, बाई टू गेट 20% डिस्काउंट। ठीक है, आप यहाँ से आप बाई वन गेट वन पे भी आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा आइटम के लिए क्या स्कीम आप सेट करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप सेम आइटम दे रहे हैं 2 पीस, सेम आइटम 1 पीस आप फ्री देना चाह रहे हैं, तो यू कैन सिलेक्ट द सेम आइटम ऑल्सो ओवर हियर, और यू कैन सिलेक्ट डिफरेंट आइटम। Now, as I show you that you can create multiple scheme master, you can see buy to get 20% डिस्काउंट वाला स्कीम भी मैंने डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अगर आप सेल्स पे देखेंगे, सपोज काउंटर वन एक आउटलेट हो गया, सेल्स आउटलेट हो गया, वहां से हम सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वहां पर वो ऑफर चल रहा है, स्कीम चल रहा है। तो डेनिम जैकेट के साथ 1 पीस के साथ फैंसी शर्ट 1 पीस फ्री है। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये बैठ गई। ये किस लिए बैठा था? क्योंकि हमने स्कीम अप्लाई किया था। तो स्कीम का डेट जो था एक्चुअली, हमने स्कीम का डेट जो रखा था यहाँ पर बाई वन गेट वन फ्री पे 1/4 से लेके 30/3/2025 तक रखा था। तो ये आज 14/2 है, तो 14/2 को आप ये भी सेट कर सकते हैं आज आज के डेट पे स्कीम चले, 14/2 से 14/2 तक स्कीम चले, तो आप अलग से स्कीम का डेट डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम आप सेट कर सकते हैं, एंड दैट विल गेट अप्लाई इन योर सेल इनवॉइस इंस्टेंटली। ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ डू वी मैनेज डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑर्डर। नाउ इन केस ऑफ होलसेल बिजनेस वी नीड अ ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, सो पहले क्या होता है, ऑर्डर आते हैं बल्क में, हम सेल करते हैं होलसेल के क्षेत्र में, बल्क में करते हैं, क्योंकि रेडी कस्टमर्स जो टेलर कस्टमर्स होते हैं वो तो नहीं आते, क्रेडिटर्स कस्टमर्स ज्यादा होते हैं होलसेल क्षेत्र में। So you will be getting orders from the market. So once you generate a sale order on the transactions option in Busy, तो आप जैसे सेल्स ऑर्डर जनरेट करेंगे, सपोज ये होलसेल पार्टी ने ऑर्डर दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने सारे आइटम्स डिफाइन किया हुआ है। जैसे कॉटन या हैवी कॉटन कैनवस फैब्रिक आपको ऑर्डर मिला है 2 रोल का, तो अब यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि रोल्स के भी डिफरेंट आप सेट कर सकते हैं, डुअल यूनिट, कि आप जो रोल होते हैं या बेल में होते हैं, आप फैब्रिक के जो है एक रोल आप ऑर्डर में आपको मिलता है, या आपने 10 रोल खरीद लिया, तो रोल के कन्वर्जन फैक्टर्स आप सेट कर सकते हैं, एक रोल में कितने मीटर्स होते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम सेल जो करते हैं रोल में से कट करके सेल करते हैं, so we may be purchasing a roll but we may be selling in meters. We cut the roll, we take the meter and we sell that meter. तो आप एक रोल में हो सकता है 30 मीटर हो, तो 30 मीटर में से 2 मीटर में सेल कर रहा हूँ, तो मुझे स्टॉक जो है रोल मीटर दोनों में दिखा देगा, मेन यूनिट एंड ऑल्टरनेटिव यूनिट के हिसाब से मुझे स्टॉक मैनेज हो जाएगी। तो इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ गेटिंग 2 रोल्स ऑर्डर, और रोल के भी डिफरेंट डिफरेंट आप साइज कलर होते हैं, वेट होते हैं, जीएसएम्स होते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पर जो है एज पर स्टॉक दिख रहे हैं जो आपके गोडाउन पे अवेलेबल है। तो द कलर वाइज, द इंच विथ वाइज, द जीएसएम वाइज, द फैब्रिक टाइप हो सकते हैं, फैब्रिक के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सेमी कोर्स होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो टेक्सचर्स भी डिफरेंट होते हैं। ओके, तो आपको 2 रोल के ऑर्डर्स मिल गए, तो आप इसको जो है सेव कर लिए। ऑर्डर भी आपको अगर सेल्समैन वाइज टैग करना है कि भाई कौन से सेल्समैन के थ्रू ये ऑर्डर मुझे मिला है, so you can tag that salesman also. If you want to see the order report, management report, you can get from display order processing report. Pending orders, you can see pending orders party wise. You select all accounts, all items, you can get to see the pending order. क्या orders किस किस पार्टी से कितने के orders आए हुए हैं, you will get party wise order.
report. So if you select the particular part, you will get the order numbers, get item name, total quantity, pending quantity, unit in meters, etc. You can see unit in meters as well as in rules also. तो आपको रोल पे भी दिखा देगा. Okay. अब यहाँ पर if you need to capture that order in the sale, so you can do it. So go to sale and you select the party जिसने आपको order दिया हुआ है. And if you press F11 over here, you can get the order number. So जो भी pending orders है, that order number will show over here. You can select that particular order number and you can convert that order in a invoice. So invoice में आप जो है वाया रोल आप यहाँ पर जो है बारकोड स्कैन करके भी सेल कर सकते हैं. आप अगर बारकोड आपको जनरेट करना है होलसेल के क्षेत्र में, आप अपना खुद का बारकोड जनरेट करना चाह रहे हैं, then you can generate your barcode and to scan your barcode to do the sale invoice. Okay. तो आपको यहाँ पर स्टॉक दिख जाएंगे. स्टॉक लिस्ट आपको बारकोड वाइज, कलर वाइज, वेट वाइज, जीएसएम वाइज स्टॉक मिल जाएंगे. उसी स्टॉक से आप आउट कर सकते हैं. तो आपकी देखिए यहाँ पर रोल जैसे आपने आउट कर लिया तो ऑल्टरनेटिव यूनिट के हिसाब से आपकी क्वांटिटी भी डिफाइन हो गया. कितना मीटर आपके कंज्यूम हो रहे हैं या कितने मीटर आपके स्टॉक से आउट हो रहे हैं. ठीक है. तो दिस इज हाउ यू कैन पिक योर ऑर्डर इन दी सेल वाउचर. Moving on the next point, enhancing job efficiency and boosting production. Now basically if we look onto a small manufacturing unit or we look onto a job work unit, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक जॉब वर्कर होता है जिनको हम रॉ मटेरियल सेंड करते हैं. दे यूज टू टेक द रॉ मटेरियल्स, दे यूज टू कंज्यूम द रॉ मटेरियल्स एंड दे यूज टू मैन्युफैक्चर अ फिनिश आइटम फॉर अस एंड वी पे अ जॉब चार्जेस टू दैट कंसर्न पर्सन. और हम देखते हैं हम खुद जॉब वर्कर हैं, हमारे पास कोई रॉ मटेरियल आ रही है, हम मैन्युफैक्चरिंग करके दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग का चार्जेस ले रहे हैं, बनाने का चार्ज ले रहे हैं प्रोडक्शन. या हमारे पास इन हाउस प्रोडक्शन फैक्ट्री है, हम कटिंग, नीटिंग, स्टिचिंग सब कुछ इन हाउस ही कर रहे हैं. So both the process can be followed in BASIC. So let's see or let's take up the questions related to this job efficiency and production. First questions that mostly occur in our mind, that is how to record a production voucher efficiently. So manufacturing mode पे क्या होता है, पहले से कुछ फॉर्मूला सेट करके आते हैं. ये आप प्रोडक्शन करेंगे तो उससे पहले आप फॉर्मूला सेट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या बॉम्ब या क्या क्या रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है एक सर्टेन आइटम बनाने के लिए. तो आप यहाँ से बॉम्ब क्रिएट कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल. So you can create a production formula which is known as bill of material, as I show you over here, that this is a finished item. I have renamed this item or I have named the bomb with the item name so that I can identify that this item bomb is this. तो मैंने जो बॉम्ब का नाम दिया है वो भी आइटम के नाम से बॉम्ब का नाम मेंशन करके रखा है. आप कुछ भी नाम मेंशन कर सकते हैं बॉम्ब के हिसाब से, बट आइटम टू बी प्रोड्यूस विल बी द फिनिश आइटम दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस. अब हो सकता है कि ऐसा भी हो कि हमारे पास पहले सेमी फिनिश बन के आता है, फिर सेमी फिनिश से फिनिश बनते हैं. तो फॉर दैट यू कैन क्रिएट मल्टीपल बॉम्ब, कि आपने पहले सेमी फिनिश का बॉम्ब बना लिया, फिर सेमी फिनिश से फिनिश का बॉम्ब बना लिया. तो आप यहाँ पर अगर हम फिनिश के हिसाब से समझे तो एक पीस बनाने के लिए हम यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी डाल के रख सकते हैं कि कॉस्टिंग जो मेरी जनरेट होगी वो तो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्ट तो मेरी फिनिश आइटम में रिफ्लेक्ट करेगा ही. इसके साथ कोई लेबर कॉस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो सकती है पर पीस पे. दैट एक्स्ट्रा कॉस्ट वी कैन डिफाइन इन दी बॉम्ब. ओके. सो दीज आर द रॉ मटेरियल दैट वी कैन मेंशन और द इंग्रेडिएंट्स दैट इज नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट. कितने करके लग सकते हैं. जैसे एक टी शर्ट बनाने में इस डिजाइन नंबर का D001 डिजाइन नंबर का टी शर्ट बनाने में मुझे बटन 5 पीस लग सकते हैं. कलर प्लास्टिक पेस्टिंग मुझे 1 पीस लग सकता है. कॉटन फैब्रिक मुझे 10 मीटर लग सकता है. तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ. एज आई डू दी बॉम्ब, एज आई क्रिएट दी बॉम्ब, अगेंस्ट दैट बॉम्ब आई कैन डू अ प्रोडक्शन एंट्री. मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ. ओके. एंड यहाँ पर हम बॉम्ब सेलेक्ट कर सकते हैं. इफ आई सेलेक्ट दी बॉम्ब, हियर यू विल फाइंड टू मेंशन द क्वांटिटी, कितना पीस प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. अगर हम 2 पीस बताएं तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी देख सकते हैं आप. बॉम्ब के अगेंस्ट में पिक होके आ चुका है. जैसे हम ओके करेंगे तो मेरी जो रिलेटेड रॉ मटेरियल है वो कंजम्पशन में ऑटोमेटिक बैठ जाएगा और एज पर फॉर्मूला मेरी क्वांटिटी भी कंज्यूम हो जाएगी. तो हियर यू कैन सी दैट दिस D001 new era 2-piece t-shirt will get created and two piece में having different sizes and different colors. तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं किस साइज का किस कलर का बन रहा है. इस साइज इस कलर का 1 पीस बन रहा है तो इसका एक यूनिक बारकोड नंबर जनरेट हो जाए. So BASIC will also help you to create a unique barcode for each quantity.
तो हर एक क्वांटिटी के लिए यूनिक बारकोड जनरेट हो जाएगा, उसका आप बारकोड स्टिकर प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपके प्रोडक्शन जैसे आप सेव करेंगे तो यहाँ से बारकोड स्टिकर प्रिंट भी हो जाएगा, तो आप बारकोड स्टिकर अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हैं। तो यू कैन सी द कंजम्पशन इज आल्सो टेकिंग प्लेसेस एंड यू कैन सी दी रॉ मटेरियल कॉस्टिंग इज आल्सो रिफ्लेक्ट ओवर हियर। अब देखेंगे तो जो अगर हम यहाँ से 150 को जीरो कर देंगे तो आपकी देखिए कॉस्टिंग कम हो गया। अब जैसे यहाँ पर 150 को ऐड कर देंगे तो 150 रॉ मटेरियल कॉस्ट के साथ प्रोडक्शन कॉस्ट में ऐड हो गया फिनिश आइटम पे। तो दिस इज हाउ द कॉस्टिंग विल रिफ्लेक्ट इन योर फिनिश आइटम। रॉ मटेरियल अगर 100 रुपए का है उसके साथ अगर 150 रुपए और मेरा एक्स्ट्रा चार्ज है तो माई एक्चुअल कॉस्टिंग विल बी 250 पर पीस। ओके, तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। नाउ दिस इज फॉर द इन हाउस प्रोडक्शन इन केस इफ यू आर हैविंग अ प्रोडक्शन यूनिट और इफ यू आर हैविंग अ प्रोडक्शन फैक्ट्री, आपके इन हाउस प्रोडक्शन फैक्ट्रीज है, देन यू कैन गो थ्रू विद दिस प्रोसेस। नाउ if you doesn't have any production factory and you want to share those raw material to a job worker, तो जॉब वर्कर क्या है, जो जॉब वर्क का काम करता है, आपका प्रोडक्शन का काम जॉब वर्कर करेगा, आपको जॉब चार्जेस पे करना है जॉब वर्कर को, जैसे वो प्रोड्यूस करके आपको फिनिश आइटम शेयर करेगा। तो उसके लिए बिजी में भी ये फीचर दिया हुआ। तो लेट मी हाईलाइट दी ऑप्शंस फ्रॉम वेयर यू कैन एनेबल दिस फीचर फॉर जॉब वर्क। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर जाके इन्वेंटरी पे आप ये जॉब वर्कर फीचर को एनेबल कर सकते हैं। तो जॉब वर्कर दो तरह के हो सकते हैं। अगर आप अपने आप को डिफाइन करें दैट यू आर अ जॉब वर्कर, समबॉडी इज गिविंग यू अ रॉ मटेरियल एंड यू आर doing the production and you are taking a job charges, then in that case you can enable this feature called enable job work in case of in-house. But in case of outside job work, you can only enable this feature called enable job work for outside parties. That means कि आप बाहर किसी को दे रहे जॉब वर्किंग के लिए, so you can enable this option called enable job work for outside parties. Okay, and you can save this configuration. अब जैसे कि आप इशू कर रहे हैं job worker, then you can go to the issue module, issue for job work. Here you can select the party, so you can create a different job working party called cutting. जैसे मैंने create करके रखा है cutting department, so I can select a party called cutting department, or I can select create a name, suppose Amit Cutter or any Anil Cutter as a cutting party. तो उसके बाद में कटिंग डिपार्टमेंट में एक जॉब आईडी या आप लॉट नंबर कह सकते हैं, लॉट नंबर वाइज कटिंग होती है तो जॉब आईडी आप मेंशन कर सकते हैं, जॉब आईडी वाइज आप एलोकेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू पिक द रॉ मटेरियल्स डायरेक्टली फ्रॉम द बॉम। जैसे कि आपने फॉर्मूला सेट करके रखा है तो आपको पता है कि एक टी शर्ट बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल कितना करके लग सकता है। तो जैसे आप यहाँ पर F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पूछेगा पिक फ्रॉम बिल ऑफ मटेरियल। दैट मीन्स कि आपने जो फॉर्मूला बना के रखा है, अगेंस्ट दैट फॉर्मूला आप वो रॉ मटेरियल अपने जॉब वर्कर को इशू करना चाह रहे हैं। तो आप जॉब वर्कर को क्या बनाने दे रहे हैं, आप एक टी शर्ट बनाने दे रहे हैं इस डिजाइन नंबर का, कितना पीस बना के देगा, सपोज 2 पीस। तो अगर 2 पीस बनाएगा जॉब वर्कर, तो फॉर दैट हाउ मच रॉ मटेरियल और व्हाट आर द रॉ मटेरियल दैट इज नीडेड टू बी सेंड टू दैट जॉब वर्कर, क्या रॉ मटेरियल और कितना रॉ मटेरियल मुझे भेजना है जॉब वर्कर के पास, वो बिजी ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा। जैसे ओके करेंगे तो ऑटोमेटिकली बिजी बता देगा आपको कि बटन आपको 10 पीस भेजना है, कलर प्लास्टिक पेस्टिंग आपको 2 पीस भेजना है, कॉटन फैब्रिक आपको 20 मीटर भेजना है, अगर आपको 2 पीस D001 न्यू एरा टी शर्ट बनाना है कटिंग डिपार्टमेंट से। तो आप इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर आप फिनिश गुड टू बी रिसीव में भी बता सकते हैं कि ये D001 न्यू एरा टी शर्ट किस साइज का बना के देगा जॉब वर्कर, किस कलर का, हो सकता है इस साइज का, इस कलर का एक बना के दे, फिर इस साइज का, इस कलर का एक पीस बना के दे, तो अलग अलग साइज कलर के भी बना के दे सकता है। तो आप इसको सेव कर लें। ओके, नाउ इफ यू गोइंग टू रिसीव द फिनिश आइटम फ्रॉम द जॉब वर्कर अपना काम कर लिया, देन आप जॉब वर्कर से रिसीव करना चाह रहे, देन यू कैन सिलेक्ट द टाइप रिसीव आफ्टर जॉब वर्कर। तो आपने पहले इशू कर दिया रॉ मटेरियल को और क्या बनाना है वो भी आपने बता दिया कि ये बनाना है, इतना पीस बनाना है, इसके लिए मैं इतना रॉ मटेरियल आपको भेज रहा हूँ। आप रिसीव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सेम पार्टी सिलेक्ट करेंगे जिसको आपने इशू किया था, एंड हियर यू कैन प्रेस F11। अगर आप F11 प्रेस करेंगे तो जो पेंडिंग जॉब आईडी जितना आपने इशू करके रखा है वो सारे जॉब आईडी आपको दिख जाएंगे उस पार्टी के रिलेटेड। अब जैसे मैंने लास्ट ये 2 नंबर वाला जॉब आईडी भेजा था, 2 नंबर के अगेंस्ट पे देखेंगे तो देखिए 2 पीस ऑटोमेटिकली बैठ गया, एंड अगेंस्ट दैट 2 पीस किस साइज का किस कलर का वो भी ऑटोमेटिकली बैठ गया यहाँ पर।
और इसका कॉस्टिंग भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे जॉब आईडी सिलेक्ट करेंगे तो ये बता दिया बटन, उसमें से 10 हो सकता है कुछ वेस्टेज किया हो, तो कंज्यूम 10 में से हो सकता है 8 कंज्यूम किया है, 2 क्वांटिटी वेस्टेज किया है उसके पास, अगर वेस्ट नहीं किया है तो उसके पास पड़ा हुआ होगा। तो हम ट्रैक भी कर सकते हैं कितना क्वांटिटी उसके पास पड़ा हुआ है, बटन कितना पीस। कलर पेस्टिंग उसने 2 पीस यूज कर लिया। कॉटन फैब्रिक 20 मीटर से उसने 15 मीटर यूज किया, 5 मीटर उसने वेस्ट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो ये भी मेंटेन कितना रुपए का वेस्ट किया वो भी यहाँ पर बैठ जाएगा। सब कुछ मिला के इसकी जो कॉस्टिंग होती है वो कॉस्टिंग रिफ्लेक्ट कर जाएगा मेरे फिनिश आइटम पे। इसके साथ जॉब चार्जेस की कॉस्टिंग भी अगर मुझे ऐड करना है, सपोज जॉब वर्कर ने कहा मुझे 100 रुपए करके पर पीस का चार्ज चाहिए, कटिंग चार्जेस, तो 100 रुपए जैसे आप डालेंगे तो ये कॉस्टिंग पे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और ये 100 रुपए आपके जॉब वर्कर के लीजर पे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो 100 रुपए करके अगर है तो यू आर प्रोड्यूसिंग 2 पीस और जॉब वर्कर इज डूइंग 2 पीस, तो पर पीस 100, देन 2 पीस 200, दैट मीन्स वी नीड टू पे 200 रुपीज टू द कटिंग पार्टी। तो उसके अकाउंट पे भी देखिए रिफ्लेक्ट हो गया क्रेडिट से। So this is how you can maintain the costing also, you can maintain the accounting also, you can manage the inventory also. अगर आप report देखेंगे so you can get the job work report from here, where you can see outside job work. From here you can see the job summary report. Party wise देखनी है, one party, तो आप यहाँ पर cutting select कर सकते हैं and you can mention the starting date, ending date. And if you want to see the manufacturing detail, you want to see the wastage detail, you can press yes for this option and you can press OK over here. तो आपको बता देगा कि आपने कितना भेजा था, कितना वेस्टेज किया, क्या बना के दिया है। ठीक है, आप रिसीव आइटम को भी एनेबल कर लीजिए तो आप रिसीव आइटम भी बता देगा क्या क्या बना। कॉटन फैब्रिक में से न्यू एरा बन के आया हुआ है 5 पीस, ठीक है, कितना इशू किया था, कितना एडजस्ट किया था, कितना मैन्युफैक्चरिंग हुआ, तो 5 पीस मैन्युफैक्चर हुआ। तो सबके अंदर हर एक रॉ मटेरियल के अंदर उसका फिनिश आइटम दिखता रहेगा, दिखेगा यहाँ पर कि इस फिनिश आइटम के लिए ये रॉ मटेरियल इतना हमने इशू किया था, उसमें से इतना यूज किया, इतना वेस्ट किया है, 5 क्वांटिटी वेस्ट किया है। सिमिलर वे में अगर हम प्रोडक्शन की रिपोर्ट भी देखें तो हम प्रोडक्शन की रिपोर्ट भी हम देख सकते हैं, प्रोडक्शन लिस्ट में जाके भी हम देख सकते हैं कि अगर हमें देखनी है कि अगर हम इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो 2 पीस जनरेट करने के लिए बटन, कॉलर, पेस्टिंग, कॉटन फैब्रिक कितना लगा, कितना कंज्यूम हुआ, तो वो हम चेक कर सकते हैं। जॉब वर्कर का मैं अकाउंट भी आपको दिखा दूं, दैट हाउ टू मैनेज द अकाउंट ऑफ जॉब वर्क। अगर आप देखेंगे तो जॉब चार्जेस का अगर आप लेजर देखें तो जॉब चार्जेस लेजर पे भी आप देख सकते हैं 200 रुपीज पोस्टिंग हो चुका है। अगर आप कटिंग डिपार्टमेंट का लेजर देखेंगे तो यू कैन सी कटिंग डिपार्टमेंट ऑल्सो इट विल शो दैट द अकाउंट हैज बीन पोस्टेड। तो आप कटिंग डिपार्टमेंट को 200 रुपए पेमेंट करेंगे, सो आपका अकाउंट पोस्ट भी बन चुका है। हाउ टू मैनेज प्रोडक्शन प्लानिंग। तो अगर आप इन हाउस प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन प्लानिंग, जैसे हम प्रोडक्शन एंट्री किए हैं तो हम आगे चल के प्रोडक्शन प्लानिंग भी कर सकते हैं कि इन फ्यूचर इफ आई नीड टू क्रिएट मोर आइटम्स, व्हाट हाउ मच रॉ मटेरियल इज नीडेड एंड हाउ मच इज इन माय स्टॉक, कितना मेरे गोडाउन पे है, कितना मुझे खरीदने है, शॉर्टेज कितना हो रहा है, डेफिशिएंसी एक्चुअली कितना है मेरा, और कितना मुझे मेरे करंट स्टॉक पे कितना है। तो उसके लिए आप डिस्प्ले करके प्रोडक्शन रिपोर्ट में जा सकते हैं, प्रोडक्शन प्लानिंग में जा सकते हैं। हियर यू कैन सिलेक्ट द बॉम्ब अगेंस्ट व्हिच बॉम्ब यू नीड टू सी द प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग देखने के लिए आपको बॉम्ब बनाना पड़ेगा, बिकॉज अगेंस्ट द बॉम्ब द प्लानिंग विल शो इन बेरी। कि अगर आपको फॉर्मूला आप क्रिएट करके रखते हैं, अगेंस्ट दैट फॉर्मूला इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट 5 पीसेस ऑफ न्यू एरा टी शर्ट, देन अगेंस्ट दैट बॉम्ब व्हाट रॉ मटेरियल इज नीडेड, कितने क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, कितने अवेलेबल है, डेफिशिएंसी अगर कुछ है तो बता देगा। डेफिशिएंसी इन द सेंस अगर आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब कि अगर रिक्वायर्ड है 25 और आपके पास अवेलेबल है 20, तो 5 डेफिशिएंसी हो गया। दैट मीन्स 5 का आपको आप ऑर्डर पोस्ट करना है, आपको आगे चल के परचेज करना है। तो आप हाथों यहाँ से पीओ रेज भी कर सकते हैं अगर आपने परचेज ऑर्डर जनरेट कर लिया या अगर आपने परचेज ऑर्डर यहाँ से एनेबल कर लिया, तो यू कैन रेज पीओ अगेंस्ट दी डेफिशिएंसी ऑल्सो। अगर आप ऑर्डर प्रोसेसिंग को ऑन कर लेते हैं तो आप यहाँ से पीओ भी रेज कर सकते हैं प्लानिंग के अगेंस्ट पे। जो डेफिशिएंसी होगा यहाँ से F4, आप यहाँ से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप जनरेट पीओ कर सकते हैं। डेफिशिएंसी क्वांटिटी रहेगा तो पर्टिकुलर उसी डेफिशिएंसी का पीओ रेज कर देगा।
ठीक है। Coming on the next question, can we efficiently manage both in-house and outside job work? As I says that कि आप बिजी में इंस्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं, लाइक प्रोडक्शन वाउचर, प्रोडक्शन प्लानिंग। आप जॉब वर्क रिपोर्ट्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं, जॉब वर्क ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया। यू कैन गो विद द इशूज issue for job work, and then you can get to receive the material from the job worker. Along with that, you can mention the job charges. आप यहाँ पर कंज्यूम कर सकते हैं मटेरियल्स को, कितना जॉब वर्कर ने यूज किया, कितना वेस्ट किया, एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन द जॉब चार्जेस। So automatically the costing will reflect in the finish item. Moving on the next point or topic, that is seamlessly stock and inventory management. What is the benefit of parameterized features for inventory management? Parameterized feature in Busy is a kind of feature that will help you to track your product in different aspects. Like आपको आइटम्स के डिफरेंट साइजेस वाइज, जीएसएम वाइज, कलर वाइज, स्टाइल वाइज आपको स्टॉक मैनेज करना है। आइटम्स का डिफरेंट, पर्टिकुलर आइटम का डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर्स है, आपको पर्टिकुलरली एक साइज एक कलर का स्टॉक मेंटेन करना है या आपको ट्रैक करना है। So you can get an option in Busy to parameterize features that you can track each and every item, different sizes, colors, style and other categories. Okay, इसके लिए आप Busy में आप देखेंगे इन the display options parameterized reports. Okay, तो जैसे आप यहाँ पर कॉन्फ़िगर में फीचर्स में इन्वेंटरीज में जाके आप अपना पैरामीटराइज डिटेल को एनेबल करेंगे। यू कैन क्रिएट मैक्सिमम 5 पैरामीटर्स। राइट नाउ आई हैव क्रिएटेड 2 पैरामीटर्स। आई एम यूजिंग साइज एंड कलर। ओके, एंड you can define up to 5 parameters, or against that parameters you can get to see the parameterized reports. तो आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको गोडाउन वाइज भी ट्रैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पर्टिकुलरली ये गोडाउन का देखना है तो थ्रू सिंगल गोडाउन यू कैन ट्रैक विद डिफरेंट साइजेस एंड कलर। आपको फिल्टर करना है, आप फिल्टर कर सकते हैं डिफरेंट साइज वाइज, क्या ओपनिंग है, क्या इन है, क्या आउट है, वो आप डिफाइन चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्वेरी का भी ऑप्शन मिल जाएगा, क्वेरी ऑन आइटम पैरामीटर। इफ यू वांट टू सी ओनली वन पैरामीटर, आप जो भी पैरामीटर यहाँ पर साइज डिफाइन करेंगे, सपोज जो भी साइज हो गया एल का, एल साइज का या ब्लैक कलर का, जो भी रहेगा उसके रिलेटेड जो भी आइटम्स रहेंगे वो यहाँ पर कैप्चर्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि तो 01 साइज का क्रीम कलर का, तो वो मुझे इंस्टेंटली बता देगा 01 साइज का क्रीम कलर का इस आइटम का किस किस सेंटर में कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, मेन स्टोर में कितना पड़ा है, सेल्स काउंटर में कितना पड़ा हुआ है, आउटलेट 1 में कितना पड़ा है, सेल्स आउटलेट 2 में कितना पड़ा है। मेरे पास 3-4 सेल्स काउंटर्स है डिफरेंट लोकेशन पे, तो मैं चेक कर सकता हूँ इंस्टेंटली। ठीक है, particularly एक size, एक color wise. How to handle slow moving inventory? Now Busy will give you a guided report that will help you to check the unmoved items or check the unmoved inventories. तो आप चेक कर सकते हैं कौन सा आइटम ज़्यादा सेल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है आप अनमूव आइटम जो कि इन्वेंट्री समरी के अंदर अनमूव्ड आइटम है वहाँ पर जाके गोडाउन वाइज चेक कर सकते हैं। सारे गोडाउन के रिलेटेड चेक करना, सारे गोडाउन के रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ आइटम बता देंगे कि ये आइटम जो है अनमूव्ड है, बहुत ज़्यादा सेल नहीं हो रही है या मूवमेंट नहीं हो रही है आइटम की। तो इट विल हेल्प यू टू ट्रैक दी स्लो मूविंग इन्वेंट्रीज. How can different sizes of same garment style be tracked efficiently in inventory? तो different sizes आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि no matter if you are having a wholesale business or if you are having a retail business or if you are having a मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, हर एक इंडस्ट्रीज में आप ये पैरामीटर फीचर्स को यूज कर सकते हैं। तो जैसे आप देखोगे तो इस होलसेल इंडस्ट्रीज में मैंने 5 पैरामीटर यूज किया है, कलर, वेट, जीएसएम, फैब्रिक टाइप, टेक्सचर। ओके, तो अगर मुझे ट्रैक करनी है तो मैं यहाँ से डिफरेंट पैरामीटर वाइज ट्रैक कर सकता हूँ, या अगर मुझे एंट्री करनी है, अगर मैं सेल भी कर रहा हूँ, if I'm going to do a sale entries to a wholesale party, अगर हम सेल भी कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे ये आइटम हम सेल कर रहे हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर बारकोड सिलेक्ट कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, उसके रिलेटेड कलर, वेट, जीएसएम, फैब्रिक, टेक्सचर, वो सारे हम यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, परचेज भी जब हम करेंगे तो हम परचेज के क्षेत्र में भी हम स्टॉक इन कर सकते हैं।
तो परचेज करते वक्त भी अगर हम अपना खुद का बारकोड जनरेट करना चाह रहे हैं फॉर डिफरेंट साइजेस एंड कलर, देन आल्सो वी कैन डू इट। तो अगर हम यहाँ पर 10 मीटर कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट साइज के, डिफरेंट जीएसएम के, डिफरेंट फैब्रिक टेंट के, डिफरेंट टेक्सचर्स के दो हो गए, इसके अलग प्राइस हो गया, सपोज 200 रुपीज में पर मीटर, इसके अलग बारकोड जनरेट हो गए, इसके इस जीएसएम के इस फैब्रिक टाइप के इस टेक्सचर के अगर मुझे अलग बारकोड जनरेट करना, तो हम यहाँ से इंस्टेंटली परचेज कर सकते हैं, तो हमारा स्टॉक इन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ से अपने खुद के बारकोड स्टिकर प्रिंट भी करना है, तो हमको यहाँ पर automatically a pop-up will come to print the barcode if we enable the features. You can design your barcode from this item barcode printing option. From here you can configure your barcode as I can show you in this option also. देखेंगे यहाँ पर तो आपको इस तरह के बारकोड स्टिकर डिजाइनिंग के ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आप यहाँ से अपने बारकोड स्टिकर को डिजाइन कर सकते हैं एंड यू कैन प्रिंट दोज बारकोड। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दूं, तो दिस डिफॉल्ट बारकोड डिजाइन विल गेट कैप्चर्ड। आप अपने हिसाब से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एंड यू नीड टू प्रिंट डायरेक्टली फ्रॉम द परचेज। यू कैन प्रिंट वंस यू सेव द परचेज एंट्री, ओके, और इफ यू गो टू प्रिंट then you can enable these options from the purchase module or the series called print the item barcode after saving। तो आप यहाँ से वाइल करेंगे तो यहाँ से आप आइटम बारकोड को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें स्पेसिफिकली ब्लू डेनिम जैकेट की लोकेशन इंस्टेंटली चेक करना है फॉर वेटिंग कस्टमर के लिए। तो मैंने दिखाया, आप इससे भी चेक कर सकते हैं क्वेरी सिस्टम से कि अगर हमें इंस्टेंटली चेक करना है देन आई कैन क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर दिस ऑप्शन। आप एक शॉर्टकट क्रिएट करके रख सकते हैं इस रिपोर्ट के लिए कि अगर हमें पर्टिकुलरली एक ब्लू कलर का चेक करना है, ठीक है, आप आइटम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ डेनिम के आइटम्स की चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने साइज जो भी हमने मेंशन करते हैं यहाँ पर हो गया या आजकल हो गया, आप गेट साइज का ब्लू कलर का है कि नहीं तो हमें इंस्टेंटली बता देगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंटली बता देगा किस किस सेंटर में किस किस आउटलेट में कितना पड़ा हुआ है। तो मेरी जो मेन आउटलेट है जहाँ पर मैं बैठ के सारे आउटलेट का स्टॉक अगर चेक करना चाह रहा हूँ तो उस साइज का उस कलर का कौन सा आउटलेट में कितना स्टॉक है, हो सकता है मेरी इस आउटलेट में नहीं है, मेरी दूसरे आउटलेट में है, सो दैट आई कैन फॉरवर्ड दोस कस्टमर टू दैट आउटलेट कि आप वहाँ उस आउटलेट से ले सकते हैं, वहाँ पर हमारी स्टॉक अवेलेबल है। तो आप ये क्वेरी ऑन सिस्टम से इंस्टेंटली चेक कर सकते हैं। स्टेप कैन बी टेकन टू फिक्स स्टॉक डिस्क्रिपेंसी आफ्टर एन एंड ऑफ सीजन इन्वेंटरी काउंट। दिस इज काइंड ऑफ फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन कि अगर आप डे एंड पे या आपकी जब भी स्टॉक अभी जो आपके पास ये बुक स्टॉक दिख रहे हैं और आपके गोडाउन में एक्चुअल क्या स्टॉक है, आप स्टॉक वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं डे एंड पे और ये मंथ एंड, तो आप ये फिजिकल स्टॉक से कर सकते हैं। तो हियर यू कैन मेंशन और यू कैन जनरेट अ फिजिकल स्टॉक एंट्री। आप यहाँ पर पर्टिकुलर डेट मेंशन कर सकते हैं, किस सेंटर का करना चाह रहे हैं वो सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप अगर आपको बारकोड वाइज भी मेंटेन करना है या आपको पैरामीटर वाइज भी इसका स्टॉक एडजस्टमेंट करना है कि जैसे कि ये इसका मेरे पास बुक स्टॉक है 44 है बट फिजिकली मेरे पास स्टॉक है 40, तो 40 किस किस बारकोड का स्टॉक अवेलेबल है मैं यहाँ से टैग कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे इसको सेव कर दिया तो जो डिफर स्टॉक है -4 ये मेरा कंज्यूम हो जाएगा, मतलब कि इसका एक ऑटो स्टॉक जनरल पोस्ट हो जाएगा और मेरी बुक स्टॉक अपडेट हो जाएगा, मेरा बुक स्टॉक 40 में अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं स्टॉक जनरल पे चेक कर सकता हूँ कि एज पर वेरिफिकेशन एक्चुअल स्टॉक आई हैव अपडेटेड, तो मैं अपना एक्चुअल स्टॉक ठीक कर लिया, 4 जो ज्यादा था एक्स्ट्रा था मैंने उसको कंज्यूम दिखा दिया। ठीक है, तो ये किस साइज का किस कलर का ज्यादा था वो भी यहाँ पर कंजम्पशन पे ले लिया। यहाँ पर लिख भी देगा दिस वाउचर जनरेटेड थ्रू फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन। हाउ कैन टाइमली रीस्टॉकिंग ऑफ फास्ट मूविंग आइटम लाइक व्हाइट शर्ट बी एंश्योर। ये ऑर्डर लेवल सेट कर सकते हैं, मैक्सिमम लेवल या आप बेसिकली जो क्रिटिकल लेवल होती है। ठीक है, आपके पास आप रिटेल पे हो होलसेल पे हो तो इन दैट केस आप कोई क्रिटिकल लेवल सेट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप वो क्रिटिकल लेवल सेट कर सकते हैं, गोडाउन वाइज सेट करना चाहे गोडाउन वाइज सेट कर सकते हैं, डिफरेंट साइज और डिफरेंट कलर वाइज सेट करना चाहे तो आप उसके लिए भी आप पैरामीटर वाइज क्रिटिकल लेवल सेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपकी इस आइटम के आपके साइज की इस कलर की आपने रीऑर्डर लेवल सेट कर दिया कि इसके नीचे आएगा तो मुझे वार्निंग दे दे या ऑर्डर पोस्ट करने के लिए बोल दें। ठीक है, तो इसका आप रिपोर्ट जो है
देख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। आपका आइटम क्रिटिकल लेवल, आप यहाँ से मेन आइटम के क्रिटिकल लेवल सेट कर सकते हैं। अगर आपको पैरामीटर वाइज चेक करना है देन यू कैन गो विद द पैरामीटराइज्ड क्रिटिकल लेवल रिपोर्ट। अब यहाँ से रीऑर्डर लेवल पर्टिकुलर आइटम्स का देखना है सारे गोडाउन के बेसिस पे, तो आप आइटम सेलेक्ट कर लें और उसकी reorder level को check कर लें. Coming on the next topic, that is the efficient and growth driven management. So now in Busy we are having some reports, or you can say some features that will help your business to be go in a good flow related to garments. Like आप क्रेडिट लिमिट आप प्रिवेंट कर सकते हैं, कस्टमर वाइज क्रेडिट लिमिट को सेट कर सकते हैं कि किस कस्टमर के लिए कितना क्रेडिट लिमिट में सेट करो, तो आप क्रेडिट लिमिट यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे ऊपर चला जाएगा तो आप वार्निंग दे देगा या ब्लॉक भी हो सकता है। आप सेट करना चाहे तो वार्निंग अलार्म के थ्रू सेट कर सकते हैं। टू क्विक रिकवर क्रेडिट फ्रॉम द कस्टमर, दिस इज with the help of sharing the payment reminders or giving the outstanding reports to the related customers. तो आप आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स से जाके आप पेमेंट रिमाइंडर सेट करना चाह रहे हैं या सेंड करना चाह रहे हैं तो आप सेंड कर सकते हैं। सारी पार्टीज को सेंड करना चाह रहे हैं, सारे पार्टीज को सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको जो है ऑटो रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि बिजी में ऑटो रिमाइंडर का भी प्रोविजन है। तो दैट यू कैन गो थ्रू विद द बिजी एजेंट यूटिलिटी दैट वी आर हैविंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजी में भी एक यूटिलिटी दिया गया है बिजी एजेंट, ये पेमेंट रिमाइंडर की यूटिलिटी है। यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, मंथ महीने में एक बार जाएगा, पेंडिंग बिल के जाएंगे, सेव करेंगे तो उस डेटा पार्टी के अंदर जितने भी पार्टीज की पेंडिंग रहेंगे पर्टिकुलर उसी पार्टीज को रिमाइंडर चले जाएंगे मेल पे with the outstanding copy as an attachment. Calculating incentive based on a sales target, consuming to a target the salesman. कि आप कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्समैन की इंसेंटिव क्या हो सकती है अगर सेल्समैन ने टारगेट अचीव कर लिया, और क्या ये प्रोसेस को मेंटेन करना काफी टाइम कंज्यूमिंग वाला पॉइंट है बिजी में? तो आंसर इज नो। बिजी आपको इजीली और सीमलेस वे में आपको ये मेंटेन करने का प्रोविजन दे देगा। जब आप टारगेट सेट करना चाह रहे हैं, सेल बिजनेस में है तो आपने सेल्समैन ऑन कर लिया, तो इफ यू नीड टू एनेबल द टारगेट देन यू कैन एनेबल इट फ्रॉम अकाउंट्स आल्सो। यू कैन एनेबल टारगेट, यू कैन एनेबल सेल्समैन, and for target you can go to administration configuration, target configuration. From here you can set a target for that particular salesman. तो आप अपना टारगेट सेट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके टारगेट रहेंगे, टारगेट का नाम आपने मेंशन कर लिया, ठीक है। एंड यू कैन सेट टारगेट वाइज, टारगेट की मंथली टारगेट हो सकती है, क्वार्टरली टारगेट हो सकती है, इंसेंटिव परसेंटेज मोड पे देना चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर आप सेल्समैन वाइज टारगेट को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करते हैं, सेल्समैन के सिलेक्शन आ जाएंगे। आपने जो भी टारगेट देके रखा है उसके हिसाब से आप इंसेंटिव कितना देने वाले हैं, परसेंट हो या वैल्यू के हिसाब से भी दे सकते हैं इंसेंटिव। वंस यू सेट योर टारगेट and on the back end busy will calculate that whether the salesman has achieved the target or not, और उसके बेसिस पे आप डिस्प्ले में जाके देखेंगे। हमारे सपोर्ट के अंदर टारगेट वेरिएंस सपोर्ट में जाके आप देख सकते हैं टारगेट 1। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर एक ब्रोकर का देखना, तो एक ब्रोकर का आप देख सकते हैं। मंथ ऑन मंथ टारगेट चेक कर सकते हैं, कौन से महीने का क्या टारगेट है, तो आपको यहाँ पर बता देगा। अभी 1 लाख का टारगेट है, अभी तक सेल हुआ है 519, तो अभी भी माइनस पे चल रही है, मतलब उसका टारगेट अभी अचीव हुआ नहीं। कितना परसेंट बिलो चल रहा है टारगेट, तो दैट विल आल्सो शो। इंसेंटिव अगर अमाउंट कुछ जनरेट होती तो यहाँ पर दिखा देगा, एंड देन फ्रॉम हियर यू कैन प्रेस F4 बटन टू जनरेट अ इंसेंटिव पोस्टिंग आल्सो इन लेजर, ठीक है। हाउ टू आइडेंटिफाई इनएक्टिव होलसेल कस्टमर। तो आप होलसेल बिजनेस पे या आप बिजनेस पे, रिटेल के क्षेत्र में तो ज्यादातर कैश पार्टीज होते हैं, तो वहाँ पर तो अनबिल पार्टीज की उतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो होलसेल के क्षेत्र में आप ये मैनेज कर सकते हैं कि अगर आपको अनबिल पार्टीज की डिटेल मेंटेन करनी है तो आप अनबिल पार्टीज की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट समरी डिस्प्ले के अंदर, अकाउंट समरी के अंदर अनबिल पार्टीज, तो यहाँ से आप कौन से पार्टीज की अनबिल पार्टी पड़ी हुई है जिससे अभी तक की कोई बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई है नहीं, लास्ट इस डेट तक ट्रांजेक्शन हुई है, लास्ट कब बिल हुआ था, लास्ट बिल डेट, लास्ट बिल अमाउंट, वो बता देगा। तो यहाँ पर आपको अनबिल पार्टीज के डिटेल बता देंगे। हाउ टू रिकॉन्सिल डेली कलेक्शन। आपको अगर डे एंड पे चेक करना हो कि कितना कैश में, कितना कार्ड में, कितना यूपीआई के थ्रू हमने कलेक्ट किया है, तो दैट यू कैन गेट फ्रॉम दी काउंट समरी, सेटलमेंट समरी रिपोर्ट। तो आप अगर देखना चाहें तो सेल पूरे काउंटर वाइज भी देख सकते हैं, अगर सेंटर वाइज देखना हो वो भी देख सकते हैं कि काउंटर 1 में टोटल बिल कितने का हुआ है, उसमें कैश अमाउंट कितना था, कितना कार्ड, कितना यूपीआई के थ्रू हुआ, तो कैश सीसी 1 हो गया, यूपीआई से सीसी हो गया कार्ड। तो आप ऐसे सेटलमेंट समरी रिपोर्ट से टोटल निकाल सकते हैं डे एंड पे। तो ये डेट वाइज देख सकते हैं, डेट वाइज आपको बता देगा।
date-wise collection, which MIS report help in making stores decisions. ऐसे बहुत सारे MIS reports हैं, so let me highlight some of the few of them. Profitability report check कर सकते हैं, bill wise, item wise, कौन सा आइटम का क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या प्रॉफिट हुआ है सेल करने के बाद, आफ्टर द प्रोसेस ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ दैट आइटम, कितने में इनका था, कितने में सेल किया है, ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है, आइटम का ये बता देगा। तो इसके अलावा भी बहुत सारे एमआईएस रिपोर्ट होते हैं, जैसे एनालिसिस रिपोर्ट। आप एनालिसिस रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं, आइटम वाइज देखना चाहे तो आप देख सकते हैं कौन सा आइटम की सेल ग्रोथ कैसी हो रही है, मंथ ऑन मंथ क्या सेल ग्रोथ हो रही है। तो ग्राफिकल व्यू मोड पे आप देख सकते हैं मंथ ऑन मंथ कि इस आइटम का अप्रैल महीने में टोटल कितना क्वांटिटी सेल हुआ, इस आइटम का अप्रैल महीने में कितना हुआ, मई महीने में कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, ये ग्राफिकल व्यू में दिखा देगा। So it will help you to analyze your business. Just one solution. So apart from all these features, Busy is providing solutions related to garment industries, which includes complete GST management. So that you all know that from Busy, or I would like to highlight this point also that Busy से आप reconciliation report है वो ऑटो मैनेज कर सकते हैं, ई वेबीली इनवॉइसिंग ऑटो जनरेट कर सकते हैं। जैसे होलसेल गारमेंट इंडस्ट्रीज को ऑटोमेटिक ई वेबीली इनवॉइसिंग भी जनरेट करनी होती है, तो वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। आप अपने जो जीएसटी रिटर्न फॉर्म है वो डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस इज द फर्स्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंपनी टू लॉन्च आईएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे कि आप अपने डेटा, अपने भी जो भी GS7 सप्लायर फाइलिंग कर रहे हैं उसके रिलेटेड जो भी डेटा आईएमएस पे अपलोड हो रही है वो आपको इंस्टेंटली बिजी में दिख जाएंगे। आप उस पर एक्शन ले सकते हैं, आप उसको रिजेक्ट करना चाहे रिजेक्ट कर सकते हैं। वहां से अगर आपको टू बी जनरेट करना है देन ऑल्सो यू कैन डू दैट। So you can see that Busy is giving a comprehensive solution for IMS for prospect users as well as the existing users. Automatic backup on Google Drive, आप टाइमिंग सेट करके रख सकते हैं, ऑटोमेटिक आपके लोकल बैकअप ड्राइव पे ले लेगा बैकअप, गूगल ड्राइव पे भी बैकअप ले लेगा। मोबाइल ऐप के थ्रू आप इंस्टेंटली कोई भी रिपोर्ट देख सकते हैं। आपको ट्रांजैक्शन करनी हो, आप ऑन द वे हो, आपके सेल्समैन मार्केट में मूवमेंट कर रहे हैं, फ्रॉम mobile app you also record your sales invoice, you can share the sales invoice instantly from the mobile app। मोबाइल ऐप से भी सेल्स इनवॉइस की कॉपीज को शेयर कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मॉड्यूल्स इज अवेलेबल, दिस इज रिलेटेड टू हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस, यू कैन से इफ अ कस्टमर हैविंग मल्टीपल आउटलेट्स, अगर किसी के डिफरेंट आउटलेट्स है डिफरेंट स्टेट्स पे हैं, अगर कोई कस्टमर कहता है कि या किसी की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि मेरे आउटलेट पे इंटरनेट की इश्यूज है, तो हेड ऑफिस के सिस्टम्स तो हमेशा ऑन नहीं रह पाएंगे, तो ब्रांच को अलग से लाइसेंस दे देंगे तो ब्रांच अपना काम करेगा या आउटलेट्स अपने काम करेंगे, डे एंड पे वो डेटा सिंक कर देगा, नेट कनेक्ट करके डेटा सिंक कर जाए। तो दैट इज पॉसिबल, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पे आप डेटा सिंक कर सकते हैं, तो सारे आउटलेट के डेटा आपके हेड ऑफिस में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे थ्रू स्टैटिक आईपी। मल्टीपल स्टोर्स, तो आप रियल टाइम पे भी मेंटेन कर सकते हैं, यू नीड टू मेंटेन रियल टाइम और मल्टीपल स्टोर्स एज आई शो दैट काउंटर 1 काउंटर 2 डिफरेंट लोकेशंस पे है, तो आप रियल टाइम पे भी काउंटर वाइज सेल को आप ट्रैक कर सकते हैं। Busy Recom, so this is an add-on feature that Busy is providing with Busy, which is related with the e-commerce business. So those who are dealing with Amazon, Flipkart and Shopify, that means जिनका सेलर पोर्टल है Amazon, Flipkart, Shopify में, तो वो ये फीचर को यूज कर सकते हैं Busy Recom, जिससे कि आप इंस्टेंटली डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने Amazon, Flipkart, Shopify पोर्टल से, और वो डेटा आपके Busy में पोस्टिंग भी हो जाएगी ऑटोमेटिक।